And so we're introduced to Asa as the son of Abijam. और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि And जो Abi- आज होगा and Abijam सर is the son of Rehoboam, who is the son of Solomon. सर once again. Yeah, so Abijah is the son of Rehoboam, who is the son of Solomon. और अविज्या जो जो सुलेमान का बेटा है और अविज्या का बेटा यारोबाम है. Now, we're introduced to Asa as being the daughter of Maacah, the daughter of Abishalom, which was actually the mother of his father, Abijam. और जो हम लोग देख रहे हैं कि आसा की जो माता उसकी माता अबशालोम की पुत्री माका थी. And so Maacah was actually his grandmother. We don't know anything about his actual mother. It's possible she died when he was very young. और ये जो माका जो है वो आसा राजा की क्या है ये दादी हैं और इनकी असली जो माता के विषय में हमें उतनी कोई जानकारी बाइबल में नहीं मिलती है. And so we have an influence in his life of his grandmother, which was a very evil influence. और जो आशा के जीवन में जो बड़ा प्रभाव हुआ है उनकी दादी का तो वो बहुत ही बेकार और बुरे कार्य करने वाली थी. Secondly, Abijam's reign was only 3 years, or between 2 and 3 years. It was a very short period of time. और अभियाम जो है वो बहुत ही कम समय उन्होंने राज किया है, करीब 3 से 3.5 साल तक. And so we would determine from this likely that Asa was actually a fairly young king, because his father had taken wives and had children during his short kingship. और हम अभी देखते हैं आशा जो है एक जवान व्यक्ति है, लड़का है और इनके पिता ने शादियां की और जब वो राजा थे. It's possible that Abijam had some children before he was king. और ये कहना बड़ी मुश्किल है कि अविज्ञा के शादी के पहले उनके पास बच्चे थे. We don't know exactly how old Asa was when he began to reign. और ये कहना बड़ी मुश्किल की बात है कि जब उन्होंने राज्य करना आरंभ किया था वो कितने वर्ष के थे. All we know is that he reigned 41 years, a comparatively long period of time as a king. लेकिन हम ये देखते हैं उनके जीवन में कि उन्होंने 41 साल तक राज्य किया, एक बहुत लंबे समय तक. We know that Asa was zealous for the Lord. और हम जानते हैं आशा के विषय में कि वो प्रभु के कार्यों के लिए एक उत्तेजित व्यक्ति हैं. This was despite his grandmother's evil influence in his life, because she was an idolatrous idol worshiper. और देखिए जो उनकी जो दादी है वो एक मूर्ति पूजक के बेटी हैं, लेकिन उन्होंने उन कामों को दूर किया. In 2 Chronicles chapter 13, we see that there was actually a battle between Abijah and Jeroboam. क्रॉनिकल सर. Yeah, 2 Chronicles 13. और दूसरा इतिहास 13 अध्याय में हम लोग अविज्ञा और ये राजा के बीच में एक युद्ध को देखते हैं. And in 2 Chronicles 13, we see that Abijah speaks to the army of Israel, the army of the northern kingdom, and he tells them that they are serving a king that rebelled against his grandfather or his own father. और अविज्ञा ये इस प्रकार से इसराइल के बारे में कहते हैं कि ये अपने पिता की वो लोग सेवा कर रहे हैं. And he quotes the covenant made by God between God and David to have a king on the throne forever. और इस बात को वे कहते हैं कि जो वाचा का संदूक है, जो दाऊद का जो राज्य है वो युगानुयुग तक रहे, इस बात को वो बखान करते हैं.
And he reminds the northern kingdom that they are serving golden calves set up by Jeroboam as gods, just like Aaron had done in the wilderness. और ये वो लोग ये भी जानते हैं कि जो यहूदा जो उत्तरी जो इज़राइल है उसमें वो क्या है सोने के बछड़े की पूजा कर रहे हैं जिस प्रकार से हारून ने वो जंगल में बनाया था। And he reminds them that in Judah, in the kingdom of Judah, in the southern kingdom, there is a temple and there is the proper worship of the true God, and that the priests of that worship are in that battle situation with their trumpets. और देखिए उस समय जब इन दो राजाओं के बीच में युद्ध हो रहा है और जो जो इज़राइल का जो दक्षिणी भाग है यहाँ पर प्रभु का मंदिर है, यहाँ पर परमेश्वर की आराधना होती है। And they are and he is reminding them basically of the time of Jericho, when the priests would lead the army of Israel around Jericho, blowing their trumpets, and how the Lord delivered Jericho into their hand. और वे इस बात को कहते हैं कि जिस प्रकार से वो याजक लोग यरीहो नगर को घेर के उसके जो चक्कर लगा रहे थे। And so we see that in this situation, although being outnumbered 2-1, Judah prevails because the Lord intervenes. और इन घटनाओं को देखते हुए ये जो दक्षिणी भाग पे ये जो उत्तरी भाग का जो यहूदा का भाग है वो उनके ऊपर प्रबल हो जाता है क्योंकि परमेश्वर ने उनको आज्ञा ऐसा बनाया किया है। And 500,000 men of the northern kingdom die in that battle. और करीब लाखों लोग हजारों लोग वहां पर उस युद्ध में मर गए। So then Asa would have been a witness to a tremendous victory given to them by the hand of the Lord. और इस प्रकार से आशा कहते हैं कि प्रभु आप उनको उनके हाथों में कर दें। Now, despite this, Abijam was not a good king. और इस बात को ध्यान रखें जो अविज्ञा है वो एक अच्छे राजा नहीं है। It says that he walked in all of the sins of his father Rehoboam. और जो अविज्ञा है वो अपने पिता रहोबयाम के पूरे जीवन में जो बुराई करी थी उन्हीं रास्तों पर चल रहे हैं। And that his heart was not wholly true to the Lord his God. और क्योंकि परमेश्वर जो पवित्र है इन कार्यों को पसंद नहीं करते हैं। Now, when we come to Asa, it says that he did what was right in the eyes of the Lord. और आशा के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं उन्होंने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में सही था। It does say that in his days the high places were not all taken away. और लेकिन इस बात को बताया गया है कि जो ऊंचे स्थान थे मूरत के वो इनके समय में ढाए नहीं गए थे। However, his heart was wholly true to the Lord all of his days. लेकिन जो आशा है उनका मन और जीवन यहोवा की ओर पूरी रीति से लगा रहा। So then the lesson that we're going to learn today is that it is one thing to be devoted to the Lord as a leader. और आज हम लोग एक बात को सीख सकते हैं कि एक अगुआ होने के नाते एक नेता होने के नाते हमें प्रभु में समर्पित होना चाहिए। It is another thing to lead people to be faithful to the Lord. और दूसरे शब्दों में कहें यदि लोगों की अगुवाई आप करना चाहते हैं तो आपको प्रभु में विश्वास योग्य होने की आवश्यकता है। This is an important distinction. और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। In the case of Abijam, we see a man who was not living his life in accordance with the Lord's desires. और अबिय्या के जीवन में हम लोग क्या देखते हैं ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को नहीं बढ़ा रहे हैं। And yet there was a time in his life where he led the people of Israel follow the Lord when he was facing Jeroboam in battle. और देखिए एक समय था कि इन्होंने इस्राएल के लोगों को उस बुरी रास्ते पर लेके गए। Abijam pointed to the priests who were with him in battle and saying, these are the priests that serve in the true temple who serve the true God. और उस युद्ध में अबिय्या इस बात को कहते हैं
वो याजक की तरफ बोल के कि ये है सही याजक और ये एक सच्चे परमेश्वर की सेवा करते हैं। Sadly, this is probably the only event in his short kingship where he actually did this. और ये ही उसके पूरे जीवन भर की एक महत्वपूर्ण घटना रही जो उन्होंने उस समय इस प्रकार से कहा। And that's because he had a problem in his own heart. He was not faithful to the Lord. और एक उनके जीवन में ऐसी परेशानी थी, वो परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं थे। However, in Asa's case, his heart was true to the Lord. और आशा की जीवन के विषय में देखें तो परमेश्वर के प्रति उनका हृदय एकदम सच्चा खुला हुआ था। We can see this devotion in his heart as he brings to the temple the sacred gifts of his father, that would be those of Solomon, and his own sacred gifts. और हम लोग आशा के जो जीवन, वो भक्तिमान जीवन है, उसको देख सकते हैं। वे बहुमूल्य से बहुमूल्य जो उपहार है वो परमेश्वर के भवन में लाते हैं। In 2 Chronicles 14, in 2 Chronicles 15, hang on. I'm just looking for it now. Yes, in 2 Chronicles 15, we see that he restored some of the glory of the house of the Lord. और हम लोग दूसरा इतिहास और 15वें अध्याय में पढ़ते हैं कि वे परमेश्वर के भवन में फिर से महिमा में ले आए। This is going to be a key sign as to whether or not a king was true to God in his life or not, how he treated the Lord's house. और ये बात हम लोग देखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के प्रति भवन में कैसा लोगों से बर्ताव किया। And so Asa establishes the true worship of God once again in Jerusalem. और आसा ने अपने जीवन काल में यरूशलेम में परमेश्वर के लिए, सच्चे परमेश्वर के लिए सच्चे आराधकों को ठहराया, स्थापना की। So let's go to 2 Chronicles chapter 14 now, and let's get into some of the more the detail around what we've read here in 1 Kings 15. आइए हम लोग कुछ और जानकारी में और आगे बढ़ेंगे। दूसरा राजा 14 अध्याय जो हम लोगों ने पहला राजा और 15 अध्याय में जो हमने पढ़ा है। So in verse 2, let's read verse 2 Chronicles 14 verse 2 to verse 6. आइए हम लोग दूसरा राजा 14 अध्याय 2 से 6 वचन तक पढ़ेंगे। आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। उसने पराई वेदियों को और ऊंचे स्थानों को दूर किया और लाठों को तोड़वा डाला और असेरा नामक मूर्तों को तोड़ डाला और यहूदियों को आज्ञा दी कि वह अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करें और व्यवस्था और आज्ञा को माने। उसने ऊंचे स्थानों और सूर्य की प्रतिमाओं को यहूदा के सब नगरों में से दूर किया और उसके सामने राज्य में चैन रहा। उसने यहूदा में गढ़ने वाले नगर बसाए और देश में चैन रहा। उन वर्षों में उसे किसी से लड़ाई न करनी पड़ी क्योंकि यहोवा ने उसे विश्राम दिया था। Now, in verse 2, we see that, or in verse 3 rather, we see that in Jerusalem itself, he takes away all the foreign altars and the high places and breaks down the pillars and the Asherim. और देखिए तीसरे वचन में हम जिस प्रकार पढ़े हैं, वेदियों को ढा दिया और ऊंचे स्थानों को ढा दिया, लाठों को तोड़ दिया है। Now, you'll remember that in 1 Kings 15, the thing that was held against him was that all the high places were not taken away. और जब हम लोग पहला राजा 15 अध्याय में पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से कहते हैं कि ऊंचे स्थान आसा राजा के टाइम में हटाया नहीं था उन्होंने। But yet here in 2 Chronicles 14, we see that he is taking them away. In fact, in verse 5, it says he took out of all the cities of Judah the high places and the incense altars. और दूसरा इतिहास 14 अध्याय 5 वचन में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, ऊंचे स्थानों और सूर्य की प्रतिमाओं को यहूदा के सब नगरों से दूर किया। And so Asa begins his kingship with true leadership, where he himself is faithful to the Lord and he is commanding the people of Israel under him to follow the Lord faithfully.
और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर आसा एक सच्चे नेता की तरह, सच्चे अगुवा की तरह इज़राइल के लोगों को बढ़ा रहे हैं, उन्हें आज्ञा भी दे रहे हैं कि उनको परमेश्वर के पीछे चलना है, उन्हें भूलना नहीं है। He begins a time of reform where he cleanses the land from idolatrous worship. और वे क्या है, ये मूर्ति पूजा को हटाते हैं और फिर से उनको इकट्ठा करते हैं। So we have a bit of a contrast, almost a contradiction in terms of what Chronicles, Second Chronicles teaches us and what First Kings teaches us. और एक बड़ा विरोधाभास हम लोगों को ऐसा जान पड़ता है कि पहले राजा 15 अध्याय में क्या है और दूसरा इतिहास 14 अध्याय में क्या कोई विरोधाभास है, ऐसा हमको लगता है। What's important to realize is that First Kings 15 is a summary, a short summary of the life of Asa, and then Second Chronicles 14 and 15 gives it to us in greater detail. और जब हम लोग पहला राजा 15 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पर क्या उनकी जो घटनाक्रम चला है, उसका क्या उपसंहार एक थोड़े संक्षिप्त में बताया गया है, लेकिन दूसरा इतिहास 14 अध्याय में एक विस्तार रूप से हमें उनकी घटनाक्रम का जो जिक्र किया गया है। And the lesson we're going to learn is that Asa began well, but he ended poorly. और हम लोग ये देखते हैं, शुरुआत से जब पढ़ते हैं, आशा ने अच्छा किया लेकिन जिनका अंत थोड़ा खराब रहा है। You'll see that in verse 5, the kingdom had rest under Asa. और हम लोग इस 6 वचन में इस बात को पढ़ते हैं कि राजा आसा के समय में परमेश्वर ने उनको विश्राम दिया था। And in verse 1, in fact, it shows us that in his days the land had rest for 10 full years at the beginning of his reign. 2 Corinthians 14, verse 1. और इस प्रकार से हम लोग दूसरा इतिहास 14 अध्याय में पढ़ते हैं, अंत में अबीया अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र आसा उसके स्थान पर राज्य करने लगा। उन दिनों में 10 वर्ष तक देश चैन में रहा। In verse 7, however, Asa is preparing for the future and he says, let us build cities, fortified cities, because the Lord has given us peace, but there is a time coming where peace will be taken away. और देखिए 7 वचन में जब हम पढ़ते हैं, पहले वचन में परमेश्वर ने चैन दिया है, आराम दिया है। 7 वचन में ये आशा क्या करते हैं और वो कहते हैं हम नगर को बसाएं, चारों ओर से शहरपनाह को गढ़ें, फाटकों को लगाएं, क्योंकि समय आ रहा है उनकी शांति को, विश्राम को ले लिया जाना। You'll notice also that Asa improves the army or strengthens the army from 400,000 under his father to 580,000. और जिस प्रकार से उन्होंने क्या जो सेना को भी बढ़ाया है 5,000 से 10,000, उनके पिताजी ने 5,000 तक किया, इन्होंने 10,000 सैनिक बढ़ा दिए हैं। Nevertheless, Zerah the Ethiopian comes against them, a foreign invader with twice as many men, 1,000,000 men and chariots. और हम देखते हैं कि वे उन्होंने हजारों लोगों को सेना में भर्ती किया और कई हजारों को ये रथों को बनवाया, घोड़ाओं को तैयार किया। Let's read Asa's cry to the Lord in verse 11, and then we'll read verses 11, 12, and 13. आइए हम लोग दूसरा इतिहास 14 अध्याय 11 से 13 वचन तक हम पढ़ेंगे। तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यूं दुहाई दी, हे यहोवा, जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है वैसे ही शक्तिहीन की भी, और हे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल ना होने पाएगा। तब यहोवा ने कूशियों को आसा और यहूदियों के सामने मारा और कूशी भाग गए। आसा और उसके संग के लोगों ने उनका पीछा कर गरार तक किया और इतने कूशी मारे गए कि वे फिर सिर ना उठा सके, क्योंकि वे यहोवा और उसकी सेना के से हार गए और यहूदी बहुत ही सी लूट ले गए। उन्होंने गरार के आसपास के सब नगरों को मार लिया। All right. In this, we learn that despite Asa's preparations for future battles, he was still outnumbered.
सर ऐसा आशा डिस्पाइस फ्यूचर Despite his preparations, he had increased the army and he had fortified the land. Along comes an enemy that he is not able to defeat on his own. और देखिए ये जो आशा ने अभी क्या किया है कि भविष्य की तैयारी करना नहीं चाहा, इस कारण क्या है वे जो अपने शत्रुओं से हार जाएंगे। And so Asa's prayer here is a man who, although he has made preparation, realizes that the victory is going to be in the hands of the Lord. और देखिए यहाँ तब वे इस बात को अपने आप पे स्वीकार करते हैं कि प्रभु जब आदमी शक्तिहीन है और वो आपकी दुहाई देते हैं तो आप मदद करते हैं। If you would have asked Asa before Zerah the Ethiopian came out, if he was a mighty king, if he was a powerful king, if he had strength, he probably would have said, yes, we have done what we could. और इसके पहले यदि ऐसा होता है वे तैयार होते और सामर्थी राजा होता तो वो यही सोचते अरे हम तो लड़ सकते हैं, हम युद्ध कर सकते हैं। However, as soon as Zerah the Ethiopian comes into the land, Asa's attitude changes and he realizes that he's not as prepared as he thought he was. और लेकिन जब युद्ध होने जा रहा है, लोग आ रहे हैं और तब वे इस बात को भांपते हैं कि हम तो कमजोर पड़ रहे हैं, तब वे परमेश्वर की दुहाई देते हैं। This should teach us as believers and as leaders that we can do whatever we want to prepare ourselves for calamity, but when it comes, it will often be far greater than our preparations, our human preparations are capable of meeting. तो इसलिए हमें जो भविष्य की हमेशा तैयारी करके रखना चाहिए ताकि हम लोग भविष्य की परेशानियों का सामना करने के योग्य बन पाएं। At the end of the day, the reason that we will have victory is because the Lord is with us. जब वो समय आएगा अंत तो हमारे पास परमेश्वर की ओर से विजय होगी। This is the same God who defeated the Midianites in the hand of Gideon and 300 men. और ये वही परमेश्वर हैं जो 300 लोगों के साथ मिद्यानियों को हराया और मिद्यानियों के हाथ से विजय दिया है। This is the same God who defeated the armies of the Philistines through the hand of a shepherd boy. और ये वही परमेश्वर है जो फिलिस्तियों के हाथ से एक चरवाहे लड़के के द्वारा विजय को दिए हैं। And this is the same God who defeated the entire armies of Egypt when they were chasing a multitude that had absolutely no soldiers whatsoever. और वही परमेश्वर हैं जो मिस्र की सारी सेनाओं को हराया और वे इजरायलियों को पीछा कर रहे थे और मैं वापस एक भी न जा पाया। I am not going to suggest that it's wrong of Asa to have strengthened his army. और मैं इसके विरोध में नहीं हूं कि आशा को अपनी शक्ति सेना को बढ़ाने के द्वारा नहीं करना चाहिए। But at the same time, Asa comes to a point where faith in God is what is going to be their greatest weapon. और इसके साथ साथ में हम दूसरी बात ये देखते हैं आशा परमेश्वर के सामने विश्वास योग्यता को दिखाते हैं, ये बहुत बड़ी महान बात है। And God hears the prayer of Asa and he defeats the Ethiopians. और देखिए परमेश्वर ने आशा की प्रार्थना को सुना और जो विरोधियों की सेना को उन्होंने कूशी सेना को हराया। Now, in the face of this tremendous victory, you would think that this would guarantee the faith of Israel, faith of Judah, and the faith of Asa in the Lord. और आप लोग इस विजय को देखते हुए ऐसा कह रहे होंगे, अरे ये तो यहूदा के विश्वास और आशा के विश्वास का फल है। It is when we receive the blessings of God or receive the victory of God in our life that we are most aware of his presence with us. और ये बात सही है कि परमेश्वर की दया हमारे ऊपर है और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में रहती है। But at the same time, pride also comes in. और उसी समय ऐसे समय में घमंड हमारे जीवन में प्रवेश हो जाता है। And it is when we have gotten a great victory from the Lord that we are at our most vulnerable.
और ऐसे समय में क्या है, हम लोग घमंड से भर जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं अपने आप में। We are tempted to believe that the victory happened because of our influence rather than because of God's influence. और उस समय क्या है, हम लोग वो लालसा में, प्रलोभन में फंस जाते हैं कि विजय तो हमारे द्वारा, मेरे द्वारा मिली है। Not that we reject God's involvement, not that we say that God wasn't involved, और हम लोग क्या है कि परमेश्वर को अस्वीकार कर देते हैं कि परमेश्वर भी मेरे साथ में थे। but rather that God has blessed us because I am so faithful. और लेकिन क्या है कि परमेश्वर ने मुझे आशीष किया है क्योंकि मैं परमेश्वर के प्रति वफादार हूँ। Now, let's read 2 Chronicles 15. Azariah, the son of Oded, comes as a prophet and speaks to Asa. And the first 7 verses we'll read. और देखिए, हम लोग दूसरा इतिहास 15 के 7 में पढ़ते हैं कि एक भविष्यवक्ता आते हैं और राजा आसा से क्या बोलते हैं। 7 वचन, परंतु तुम लोग हियाव बांधो और तुम्हारे हाथ ढीले ना पड़े, क्योंकि तुम्हारे काम का बदला मिलेगा। 7 से 1 through 7, yeah. हो। तब परमेश्वर का आत्मा ओवेद के पुत्र अजर्या में समा गया और वह आसा से भेंट करने निकला और उसने कहा, हे आसा, हे सारे यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वह तुमसे मिला करेगा। परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह तुमको त्याग देगा। परंतु बहुत दिन इज़राइल बिना सत्य परमेश्वर के और बिना सिखाने वाले याजक के और बिना व्यवस्था के रहा। परंतु जब जब वे संकट में पड़कर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे और उसको ढूंढा, तब तब वह उनको मिला। और उस समय ना तो जाने वाले को शांति होती थी और ना आने वाले को, वरन सारे देश के सब निवासियों में बड़ा ही कोलाहल होता था। जात-जात के नगर से नगर चूर किए जाते थे, क्योंकि परमेश्वर नाना प्रकार का कष्ट देकर उन्हें घबरा देता था। परंतु लोग हियाव बांधो और तुम्हारे हाथ ढीले ना पड़े, क्योंकि तुम्हारे काम का बदला मिलेगा। All right. This prophet reminds Asa that there was a time in Israel's history where they had no law, they were without the true God, and they had no priest to teach them about him. और इस बात को जो अजर्या हैं वो क्या कहते हैं, ये इस बात की घोषणा करते हैं कि तुम लोग सत्य परमेश्वर के बिना थे, कोई अच्छा याजक आपको सिखाने वाला नहीं था। This is probably referring to the time of Israel in Egypt. और ये बात को दर्शाता है, मिस्र के समय को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। Although it could also be referring to the time of the judges when Israel rebelled against the Lord and turned to idols. और दूसरी तरफ से इस बात का भी प्रदर्शित किया जा रहा है कि न्यायियों के समय में इज़राइल के लोग क्या परमेश्वर के विरुद्ध हो जाते थे। And Asa is told to take courage. Don't let your hands be weak, for your work shall be rewarded. लेकिन आशा को ये अजर्या इस प्रकार से कहते हैं कि तुम लोग हियाव बांधो, तुम्हारे हाथ ढीले ना पड़े, तुम्हारे काम का बदला मिलेगा। I want you to pay attention to that statement most of all. Take courage. Do not let your hands be weak. और देखिए, एक बहुत बड़ी एक बात बोली जा रही है कि तुम लोग हियाव बांधो, हिम्मत बांधो, तुम्हारे हाथ ढीले ना पड़े। Now, if Asa had been an arrogant king at this time, and he had just heard those words after being part of this defeat of 1,000,000 men, how would he have taken that? और यदि अपन लोग सोचें कि एक जो आशा है, बात मानने वाले लोग नहीं है, हार हो जाती है, तब वो कैसा रहता? Would he not have said, have you not seen what the Lord has just done through me? और क्या आप वो ऐसा नहीं कहता कि क्या आप लोगों ने नहीं देखा कि परमेश्वर ने मेरे हाथ से कैसा कार्य किया?
Were you not watching the great victory? क्या तुम इस महान विजय को देख नहीं रहे थे? How can you tell me not to let my hands be weak when I have just defeated a man with 1,000,000 men? और मैंने लाखों लोगों को हरा दिया है, तो तुम मेरे से कैसे कह सकते हो कि मेरे हाथ ढीले पड़ रहे हैं? With the Lord's help, of course. परमेश्वर हमारे साथ है। But this is pride speaking. We put in those statements with the Lord's help, of course, but we really mean we did it. अरे हमने तो किया था, परमेश्वर ने भी हमारी मदद की है। यदि इस प्रकार से वो कहते हैं, तो ये उनका घमंड बोलता है। Thankfully, Asa was humble at that point in his life. We'll soon see later in his life he was not. लेकिन जो अपने जीवन के शुरुआती दिनों में आसा नम्र व्यक्ति थे, लेकिन अंत के समय में ऐसे वो नहीं रहे। Let's read verse 8. आइए हम लोग 8वां वचन पढ़ेंगे। जब आसा ने ये वचन और ओबेद नबी की नबूवत सुनी, तब उसने हिवाव बांधकर यहूदा और बिन्यामीन के सारे देश में से और उन नगरों में से भी जो उनसे अप्रेम के पहाड़ी देश में ले लिए थे, सब घिनौनी वस्तुएं दूर की और यहोवा की जो वेदी यहोवा के ओसारे के सामने थी, उनको नए सिरे से बनवाया। Now, see what happens? Asa responds and he takes courage and he strengthens his hands. And it's not because he is thinking about another invader, but he is thinking about the spiritual welfare of his people. और देखिए इसी भविष्यवाणी के बाद वे अपने हाथों के द्वारा इस एफ्रेम में बिन्यामीन के सारे देशों में वे क्या करते हैं, घिनौनी वस्तुओं को दूर कर देते हैं। He knows that the faith of his people at this point is strong because they have just seen a great victory. और वे लोग क्या है कि विश्वासी हैं, इस बात के गवाह हैं, क्योंकि उन्होंने महान विजय को अभी देखा है। And it is at that point that he decides to cleanse the land again for a second time. और इसी बात को ध्यान में रखते हुए वे अपनी जगह को और जो इज़राइल की जो भूमि है उसको दोबारा से शुद्ध करते हैं। You might say, well, where did these idols come from? He had already gotten rid of all the high places at the beginning of his reign 10 years earlier. और आप कहेंगे कि 10 साल के पहले तो इन्होंने बड़ी जो ऊंची-ऊंची जगह थी उनको ढा दिया था, ये फिर से कहां से आ गई? Whenever we read about the worship of idols in the Old Testament, we should really be thinking about the flesh because because idolatry is really about worship of self. और जो मूर्ति पूजा है वो आप सब सोचते हैं कि ये कहाँ से आ जाती है बार-बार। ये मूर्ति पूजा अपने आप की पूजा करना, अपने आप को महत्व देना भी कहलाता है। And who among us can say that the flesh is truly defeated? और हम में से कौन ऐसा कह सकता है कि हमारा जो शरीर है सच में हमने उसको हरा दिया? And what spiritual leader would say that amongst the people that I am responsible for, there is no flesh? और ऐसा कौन अगुवा है आत्मिक वो कह सके कि हमारे बीच में कोई भी ऐसा शरीर नहीं है। The flesh is a constant foe that is creeping into our lives that seeks to overcome it and to take possession of us. और जो हमारे कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे अंदर जो शरीर के स्वभाव नहीं है, क्योंकि ये हमारे जीवन में चलता रहता है। Over and over, we're going to see how good kings take away high places and remove idols. और हम लोग देखते हैं राजाओं के बाद और राजा आए और उन्होंने ऊंची-ऊंची जगहों को जो मूर्ति पूजा की जगह थे उनको ढा दिया है। So then Asa cleanses the land again after God gave him this great victory, and the people are willing. और आसा राजा ने ऐसे जो बुराई के कार्य थे उनको ढा दिया है, उसके कारण परमेश्वर ने महान उनको विजय दी है। In fact, in verse 9, we see that from the tribes of Ephraim, Manasseh, and Simeon, there were great numbers that had come to live in the southern kingdom because they saw that God was with Asa. और हम लोग इस बात को देखते हैं कि 9वें वचन में कि इस प्रकार से परमेश्वर ने उनको क्या है
सारे यहूदा बिन्यामीन और एप्रैम मनश्शे और सिमोन के जो लोग उसके संग रहते थे उनको इकट्ठा किया, और क्योंकि वे यह देखकर उनका परमेश्वर उनके संग रहता है, और उनको बहुत बढ़ाया। In verse 11, we see that they sacrificed great quantities of animals from the spoil that they had taken from the Ethiopians. और जो उन्होंने इथोपियन से जो लूट ले आए थे, उसके कारण उन्होंने परमेश्वर को एक बहुत बड़ी बलिदान के रूप में भेंटें अर्पण की हैं। Such a gesture was acknowledgement that the victory was at the hand of the Lord. और इस बात को उन्होंने माना कि हाँ, ये जो हमको विजय मिली है वो परमेश्वर के हाथ से ही मिली है। Then they entered into a covenant to seek the Lord. और जब वे लोग परमेश्वर की वाचा को देखने लगे और उस पर विचार करने लगे। Now, in the scriptures, we read of two great covenants. There is the old covenant and the new covenant. और बाइबल में हम लोग दो वाचाओं के बारे में पढ़ते हैं, पुरानी वाचा और नई वाचा। In many times in scripture, under Joshua, under David, under Solomon, under Elijah, and here under Asa, Israel renews the covenant once again. और देखिए, हम ये जानते हैं कि लीसा के समय से लेकर सोलोमन, दाऊद के समय से अभी आसा के समय में क्या है, जो वाचा को फिर पुनर्स्थापित किया जा रहा है। In other words, they come and they state their intentions to follow the Lord. और उनका उद्देश्य यही है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरी रीति से माना जाए। And then they say this, that whoever would not seek the Lord, the God of Israel, should be put to death. और ये इस बात को भी वहां रखा गया है कि जो परमेश्वर की आज्ञा पूर्ण रीति से ना माने, उसकी हत्या, उसको मार दिया जाए। Their spiritual zeal was at a peak in the history of Israel. और देखिए, इस समय क्या है कि इजराइल के पूरे ऐतिहासिक जीवन में परमेश्वर के लिए जलन उत्पन्न हो गई है। Verse 15, it says, and the Lord gave them rest all around. और जब 15 वचन को हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उन सबको विश्राम दिया। You know, it's a wonderful thing when there are times of victory and leaders seize that opportunity. और देखिए, एक बहुत ही अच्छी बात है, समय है कि उनको विजय प्राप्त हुई है, और उनका जो अगुवा है वो नम्रता होके इस बात की खोज कर रहे थे। Faith is like climbing a mountain. पढ़ें सर। Yeah, faith sometimes is like climbing a mountain. और ये जो विश्वास है, कभी-कभी हमको ऐसा लगता है कि हम पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं। There are times that we reach out our hand to the Lord to help us, and He pulls us up the mountain. और हम लोग अपने हाथों को आगे बढ़ाते जा रहे हैं कि परमेश्वर हमारे हाथों को पकड़ के हमको चढ़ाएंगे। It's when we let His hand go because we think we are better off using both our hands and our feet rather than just three, that we start to slip backwards again. और हम लोग चढ़ने की बजाय हम लोग इस बात की अपेक्षा करते हैं कि हमारा कोई हाथ पकड़ के हमको ऊपर चढ़ाने में मदद करे। Here the Lord had pulled the nation of Judah up the mountain of faith because of that great victory. और यहाँ परमेश्वर ने यहूदा देश को हाथ पकड़कर खींच लिया है, उनको क्या विश्वास के शिखर पर पहुंचाया है। And Asa saw that it was an opportunity to renew the covenant with the people, with the Lord, and he used it. और आसा ने क्या देखा, ये समय है कि हम पुनः इस वाचा को स्थापित करें परमेश्वर के साथ। I want to tell you, leaders, there are opportunities to do this in the lives of the churches that you lead, but you need to be wise as to when you do this. और मैं ये बात बता रहा हूँ, जो हमारी कलीसिया में अगुवे हैं, मौके को देखकर उस मौके का प्रयोग सही से करना है। You need to be always constantly on guard about sin in the church. This is something that is non-negotiable. और हमें अपने जो अगुवाई हम लोग कलीसियाओं में परमेश्वर के प्रति जो
पाप के विषय में बहुत गंभीर रहने की आवश्यकता है। However, there are times of victory that we need to springboard off of or leverage in order to remind the people that the reason we have this victory is because we have depended on the Lord. और जब हम लोग जब विजय प्राप्त करते हैं, तो उसके बाद में परमेश्वर को जो भेंट चढ़ाई जाती है, तो ये प्रतीक है कि परमेश्वर ने हमको विजय दिलाई है, इस प्रकार इसलिए हमें परमेश्वर को ये भेंट अर्पण करना है। Now, in verse 16, it shows that King Asa even judged his own grandmother for her sin with regards to an idol. और हम लोग आगे जो 16 वचन में देखते हैं, आसा राजा की माता माका, जिसने असेरा के पास रखने के लिए घिनौनी मूरत बनाई थी, उनको उस पद से हटा देते हैं। Look at what Asa did in verse 16. He cut down her image, he crushed it, and he burned it at the brook Kidron. और देखिए जो माता ने जो एक जो असेरा की जो मूर्त बनवाई थी, उसको काट दिया है, उसको किद्रोन नाले में फूंक दिया, पीस डाला है। This was done in the sight of everyone in Jerusalem. The brook Kidron was just outside the wall. They would have been able to observe from the wall what Asa was doing to his own grandmother's idol. और देखिए वहां पर सब लोगों के देखते देखते आसा ने अपने जो दादी की जो मूर्त खड़ी कराई थी, उसको किद्रोन नाले में बाहर जाके उनको फूंक दिया, लोगों को देखते देखते। Dear leaders, there is going to be times that there is sin that happens in your families. जो आप जो कलीसियाओं में अगुवे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आपके परिवार में पाप में अपराध हैं, उनको आप गंभीर रीति से लें। The last thing you should do is to treat those things secretly in order to try to protect family from the shame of exposing it and setting a double standard. और अपने जो परिवार में हमें इस बातों के प्रति गंभीर होना पड़ेगा, ताकि हम लोग उस लज्जा से, शर्म से बच पाएं। There should be absolutely no difference in the way that you treat sin in the church, if it's your family or if it's someone who's not your family. और जो पाप के प्रति हमें बहुत ही गंभीर रहने की आवश्यकता है, चाहे वो हमारे परिवार से हो, चाहे हमारे परिवार से नहीं है तो भी। Remember, in the church, everyone is your family. Spiritually speaking, everyone is your family. यदि हम लोग इसको आत्मिकता के तौर से लें, और कलीसिया में हम हमारे सब भाई बहन हैं। Now, we do see here that in verse 17, it says the high places were not taken out of Israel. और फिर से हम लोग 17 वचन में इस प्रकार से देखते हैं कि ऊंचे स्थान इस्राएलियों से ढाए ना गए। This is looking forward to the end of Asa's life, where those high places have been reestablished once again. और देखिए आशा के जे अंतिम समय में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऊंचे स्थान फिर से बना दिए गए हैं। Despite all our efforts, there is a constant vigilance. We cannot say just because we have been a faithful leader for so many years that we can put it in cruise control and it will be fine the rest of our days. और ये हम लोग ऐसा कभी नहीं कह सकते हैं कि हम तो एक अच्छे अगुवा रहे, सो अब गलतियां और पाप दोबारा नहीं आएगा। There was no more war until the 35th year of the reign of Asa. और आशा के 35 साल तक कोई युद्ध नहीं हुआ। In his 36th year, Israel comes up against Judah. और देखिए 36वें वर्ष में जो आशा राजा का जो राज्य करने का, वे लोग यहूदा के खिलाफ विरुद्ध में युद्ध करने के लिए खड़े हो गए। How does Asa respond? अब देखिए कि आशा ने कैसे प्रत्युत्तर दिया है। He knows that there's a covenant between Baasha, the king of Israel, and Ben-Hadad, the king of Syria. और उन्हें मालूम है कि सीरिया के राजा बेन हेदेद और यहूदा के राजा जो बासा हैं, उनके बीच में एक वाचा है। Asa takes silver and gold from the house of the Lord, and he sends it to the king of Syria and says, break your covenant with Baasha and make a covenant with me. और देखिए आशा अब क्या काम करते हैं, परमेश्वर के भवन से अर्पण की जो वस्तुएं, सोना चांदी, उसको लेके बेन हेदेद जो सीरिया का राजा है, उनके पास भिजवाए, कहते हैं कि यहूदा के राजा बासा से अपनी वाचा तोड़ दो और मेरे साथ में वाचा बांध लो। And Ben-Hadad does that. He stops supporting Baasha and he supports Asa.
और बैन हेदद ने वही किया, यहूदा के साथ में वाचा को तोड़ा और आसा के साथ में वाचा को बांधा। And the attack cities that Baasha had been building, Asa is able to dismantle and use to establish his own. और देखिए फिर क्या करते हैं, जो उन शहरों को वो तहस-नहस करते हैं। Everything would seem to have worked out perfectly, just the way that it should have. और पूरी तरीके से ऐसा एक अलग प्रकार का नजारा दिख रहा है। However, in verse 7, another prophet, Hanani, comes and speaks to Asa and says, "You relied on the king of Syria, you didn't rely on the Lord." और देखिए जब दूसरा इतिहास 16 अध्याय का 7 वचन में एक दूसरा भविष्यवक्ता जो हनानी है, वो आते हैं और कहते हैं तुमने राजा वो सीरिया के राजा पे भरोसा रखा, परमेश्वर पर नहीं रखा। In verse 8, he reminds him of the great victory against the Ethiopians and another victory against the Libyans. और देखिए इस बात को वो कहते हैं, क्या तुम्हें याद नहीं है कि कुशियों के हाथ से, लूबियों के हाथ से परमेश्वर ने कैसे विजय दिलाई थी? And so he tells Asa that he has done foolishly, and from that point on, he will have wars as a result of his unfaithfulness. और देखिए वो भविष्यवक्ता उन्हें याद दिलाते हैं, तुमने ये परमेश्वर के सामने मूर्खता की है। Asa reacts badly and he puts him in prison. और देखिए आसा ने बहुत बुरी चाल चली और हनानी भविष्यवक्ता को लेकर बंदीगृह में बंद कर दिया। And Asa begins to act improperly towards his people, being cruel to some of them. और जो आसा का जीवन अब क्रोधित हो गया है, क्रोध के साथ में लोगों के साथ बर्ताव कर रहे हैं। The Lord sends disease to Asa in the 39th year of his reign. और परमेश्वर फिर आसा को 39वें वर्ष में उनको वो बीमार कर देते हैं। But he doesn't seek the Lord's help in healing him, he seeks the help of physicians. और देखिए वो वैद्यों की तो शरण ले रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की शरण और परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। Now notice, it's not physicians that are evil. It is the fact that he doesn't seek the Lord. देखिए वैद्यों के पास, डॉक्टरों के पास नहीं जाना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन परमेश्वर की भी वो भरोसा नहीं रख रहे हैं, परमेश्वर से भरोसा उठ गया, मतलब भरोसा नहीं करते हैं। If you're sick, absolutely go to the doctor and get medicine, but ask for the Lord to give the doctor wisdom. और देखिए आप जब आप बीमार हो, रोगी हो जाएं तो डॉक्टर के पास जाएं, लेकिन इस बात को भी ध्यान रखें कि परमेश्वर डॉक्टर को बुद्धि देते हैं। There's nothing wrong with physicians. Luke was a physician. और देखिए डॉक्टर के पास जाना कोई गलत नहीं है, क्योंकि लूका भी डॉक्टर थे। But where does the wisdom that the physician has received come from? It comes from God. और देखिए एक वैद्य डॉक्टर है, जो उनके पास जो बुद्धि आती है वो परमेश्वर की ओर से। The point here is this, that in the end of Asa's life, he forsook following the Lord with his whole heart. देखिए अभी जो आशा है क्या है, वो अपने जीवन में परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के नहीं चल रहे हैं। And the consequences were that the high places were reestablished. और देखिए उसका मतलब क्या हुआ, उनका अर्थ क्या निकला कि जो ऊंचे स्थान थे, मूर्ति पूजा के स्थान थे, वो फिर से बना लिए गए हैं। He himself became sick. और वो खुद भी रोगी हो गए हैं। But the biggest issue is that the army of the king of Syria escaped from him. Verse 7, God tells him that if he had persisted in faith, he would have defeated Ben-Hadad. और देखिए क्या होता है कि बेन-हदद जो सीरिया की सेना है, इनके हाथ से निकल गई। यदि ये परमेश्वर पर भरोसा रखते, वो इनके हाथ से निकल नहीं पाती, उनको हारना ही पड़ता। And this is significant because we'll see that Ben-Hadad becomes a constant foe to the kings of Judah in the future, and Asa missed his opportunity to defeat him. और देखिए आखिरी में हम लोग देखते हैं जो बेन-हदद जो राजा है, वो क्या है, वो यहूदा के राजा को हराने के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया, नहीं तो ये हरा देते उनको। There is a reason why leaders in their old age should give way to younger leaders. और देखिए जो बुजुर्ग अगुवे हैं, उन्हें अपनी बुद्धि के साथ में और अनुभव के साथ में नए अगुवों को खड़े करना है। Because with older age,
comes, well, let's just say that there are reasons why when we get older that we become less patient and we don't have the same energy. And for that reason, it is better to surrender the leadership to younger men who will, in their dependence on God, continue to do the work. और जब एक अगुवे या हम में से कोई जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो हम उतने ताकतवर बुद्धि के अनुसार या कुछ भी कहें हम वैसे नहीं रहते हैं, इसलिए हमें अपनी कलीसियाओं में नए युवाओं को अगुवा के रूप में परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए उन्हें बढ़ाना चाहिए। Not every leader has it within them to remain a good leader to the end of their days. Sometimes it is better to say, I'm done. Someone else can now do a better job. और सब लोग तो ऐसा नहीं कर पाते हैं, लेकिन बहुत लोग हैं जो कहते हैं मैंने अपनी पूरी जिंदगी अच्छा किया है। Very good. Friday, we'll talk about